بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمن یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سمن یہ ہمارا انفارمیشن کا پروگرام ہوتا ہے. یہ ہماری لوکل کمیونٹی کی باتیں ہوتی ہیں, یہ ہمارے لیے باتیں ہوتی ہیں, انفارمیشن ہوتی ہے. جس طرح ہم نے اعلان کیا تھا, اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا اور ویسے بھی اعلان کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے مہمان ہوتے ہیں, اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اپنے اپنے طریقے سے انفارمیشن دیتے ہیں. اور کچھ ضروری نہیں ہوتا ہمارا متفق ہونا, لیکن جو انفارمیشن دیتا ہے, اپنا ٹائم دیتا ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, اپنے بچوں کا ٹائم نکال کر جو لوگ چھٹی والے دن بیٹھتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے انفارمیشن لے کر آتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ سابقہ سٹی کونسلر اور سوشل ورکر اور سیاستدان لبنہ الہی صاحبہ جو ہے وہ ادارہ آپ کی آواز کی مہمان ہوگی. اور جو ٹائم کی بڑی پابند ہے, 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ اپنا ٹائم کلیم کرتی ہیں کہ آپ نے مجھے اتنے بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا. اگر خود بھی کوئی 1 آدھ منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو پھر بھی میسج جو آتا ہے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے سیکھنے کا, سکھانے کا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کرنے کا. اور انفارمیشن دینا جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے اپنی کمیونٹی کے لیے. کوئی یہ مفت میں فری ولی لوگ انفارمیشن دیتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں, اپنے سامعین تک پہنچاتے ہیں. ہمارا وعدہ ہوتا ہے جو خبر ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. جتنے لوکل پروگرام ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور آپ کے ساتھ ڈیفینیٹ آپ کا کام ہے رائے دینا. اگر آپ خود بات نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے, تو پھر میرے خیال ہے بند کمروں میں بہت ساری باتیں کرنا پھر بند کمروں تک ہی رہ سکتی ہے. لبنہ الہی صاحبہ, میں نے چھوٹی سی تمید باندھی آپ کو, ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. جی السلام علیکم, اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور میں شروع کروں گی آپ کو خراج تحسین پیش کرنے, کیونکہ جو کمون کے الیکشن ہوئے تھے اس میں آپ نے جو بھی آپ کر سکتے تھے, جو بھی آپ کے مطلب اس کے اندر تھا, دسترس میں تھا, آپ نے پاکستانیوں کو بڑے ایمانداری سے ہر طرح کی انفارمیشن دی ہے. مجھے یہ بہت پسند آیا ہے. عموماً لوگ جانبداری سے کام لیتے ہیں اور بند کمروں میں بیٹھ کے سینہ گزٹ کرتے ہیں. ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. یہ 2026 ہے, تو تھینک یو فار دیٹ. ہمارے لوگوں میں ذرا تھوڑا فقدان ہے اس چیز کا کہ کسی سے ذرا بھر بھی غلطی ہو جائے تو اس نے جو 20 اچھے کام کیے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جب میرے دل میں کسی کے لیے کوئی گلہ آتا ہے تو میں کہتے نہیں اس نے یہ بھی تو کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, کوئی بات نہیں, میرے اپنے بہن بھائی بھی تو کر دیتے. تو یہاں سے میں شروع کروں گی کیونکہ نئے سال میں میرا آپ کے ساتھ یہ پہلا پروگرام ہے. بالکل بجا فرمایا. لبنہ, آپ نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا, آپ نے اپنی پارٹی کے لیے, اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کام کیا, اور کوئی کام آپ نے چھپا کر نہیں کیا. فرنٹ لائن پر آپ نے کام کیا, اور جو بھی آپ نے کام کیا وہ چھپاتی نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھنا چاہے وہ بتاتی بھی ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. لبنہ, یہ کمیون کے الیکشن جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. اب وہ لارڈ میئر نے بھی جو دعوت دی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جو لارڈ میئر دعوت دیتی ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کو, یہ ایک پروٹوکول کا حصہ ہوتا ہے, اور اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ خالی دعوت ملنا, ہیلو ہیلو کرنا, جپیاں ڈالنا, چائے کھانا کر کے تو واپس چلے جانا. نہیں, وہاں پہ فرضی طور پہ اس دن ایک سیشن رکھا جاتا ہے جس کو BR کی میٹنگ کہتے ہیں, جسٹ فرضی طور پہ, تاکہ بعد میں یہ کوئی سکینڈل نہ بن جائے کہ جی یہ تو صرف کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے, پتہ نہیں آدھے پونے گھنٹے کے لیے. اس کے بعد جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ میئرز کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں سارے. مطلب یہ اٹ از اے کائنڈ آف نیٹ ورکنگ گیدرنگ کے لیے, اور اس میں جو پہلا قائم کام ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. آپ اپنے ساتھ عموماً ٹاؤن ہال میں جو فنکشنز ہوتے ہیں, جیسے کوئین آ رہی ہے تو, یا نیلسن منڈیلا آ رہا تھا, یا اس طرح کا کوئی VIP شخصیت, تو آپ اپنے ساتھ ایک کسی جس کو لیسیا کہتے ہیں کمپنی کے لیے ایک بندے یا بندی کو لے کے جا سکتے ہیں. لیکن یہ فنکشن پیورلی ہے کہ یہ ایک بھائی چارے کی فضا ہوتی ہے, اور اس میں آپ ایک دوسرے سے ٹیبلوں کا پورا ایک انتظام ہوتا ہے کہ کس نے کدھر بیٹھنا ہے, اور وہ بنانے والے بڑے سوچ سمجھ کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ وہیں سے ان کی نیٹ ورکنگ انڈرسٹینڈنگ جو نہیں ہے. آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ کھانا جو نہیں ہے وہ دلوں کو جوڑتا ہے, تو وہاں پہ کھانا کھلا کے وہ سیاست کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. بڑی ایک نائس چیز ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مطلب ایک دوستانہ ماحول میں, کیونکہ الیکشن میں دوران الیکشن بہت ساری چیزیں آتی ہیں, دل میں غصے آتے ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. تو وہ ڈینش ایک بہت اچھی ٹریڈیشن ہے کہ الیکشن کے دوران جو کچھ ہوا
اس کے اوپر ہم لکیر مارتے ہیں اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ. تو ایک پہلی میٹنگ ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے بعد سارے لوگ جو نہیں ہے، جس کو فیسٹ سیل کہتے ہیں، جو پارٹی کا ہال ہے جس میں بڑے بڑے خوبصورت جھومر لگے ہوئے ہیں، بڑا ایکسپینسو فرنیچر ہے اور بڑا اس کمرے کو بڑا سنبھال کے رکھا جاتا ہے، نک سک اس کی ہر وقت درست کی جاتی ہے. جی چلیں لبنہ، یہ تو ہوتا ہے، یہ سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی اپنی کمیٹیاں مل گئی. تو لبنہ آپ بتائیں کہ ایک سٹی کونسل جو ہے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ وہ پاورفل ہوتا ہے اگر ایمانداری سے کام کرے، ہر میٹنگ میں جائے، اپنا سارا ہوم ورک کر کے جائے، جو ان کو پیپر ملتے ہیں تو یہ جو ٹارگٹ ہوتے ہیں، جو کمیونٹی کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ، ووٹر سپورٹر کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، پھر ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہمیں پارٹی نہیں کرنے دیتی. دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیا پارٹی ہر بات پہ روکتی ہے؟ جی نہیں، اس میں نے دیکھا ہے عموماً پاکستانیوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو وہ نیٹ ورکنگ نہیں کرنا چاہتے. جیسے ایس ایف کا، سوشل ڈیموکریٹ کا ایک سسٹم ہے کہ جیسے کوئی اسکول کی اول ہے، تعلیم کی اول ہے، تو پارٹی کے اندر بھی اسی نام سے ایک اور کمیٹی ہے جس میں صرف پارٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں. تو میں تو اپنے کام وہاں سے شروع کرتی تھی، وہ میرا ساتھ دیتے تھے، پھر ہم اسی وہ سجیشن جو تھی، بے شک میں اس کے لیے کام کرتی تھی، اس کو وہ گروپ سپورٹ کرتا تھا، یعنی انڈائریکٹ اس کو پارٹی سپورٹ کرتی تھی. پھر جو پارٹی کے اندر جو گروپ تھا ان کے ساتھ ہم بات کرتے تھے کہ جی ہم نہیں، میں بات کرتی تھی کہ یہ اس طرح ہونا ہے، جیسے مادری زبان کی تعلیم ہے. پھر جو اس ایشو کا سپوک مین ہوتا تھا اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑتی تھی. بے شک سجیشن پہ میرا نام لکھا ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے ذرا مجھے پاکستانی حوصلہ کرنا پڑتا تھا. پیش وہ جو او ایف ہوتا تھا وہی کرتی تھی یا کرتا تھا. اس کے بعد پارٹی بجٹ دیکھتی تھی، اس کے بعد پھر وہ پارٹی کے نام سے ایشو جو نہیں ہے اس کو سجیسٹ کیا جاتا تھا. پھر جن کی بجٹ کی سامہ بائٹ ہے، کیونکہ کوئی چیز مفت تو نہیں نہ ہوتی، جو ہمارے جن کے ساتھ ہمارا الحاق ہوا ہوتا تھا ان میں بات ہوتی تھی کہ جی ٹھیک ہے تم یہ کر لو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اس کے بعد راجہ صاحب یہ نیچے جو نہیں ہے ووٹنگ کے لیے آتی تھی. اب آپ خود سوچ لیں کہ کہاں مطلب کتنے مراحل سے گزر کے یہ بات ہوتی تھی. ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں کیونکہ ان میں سٹیپنا نہیں ہے، انہوں نے اکثریت میں پارٹی میں کام نہیں کیا ہوتا، ان کی سکولنگ ہی نہیں ہوتی. وہ 3 4 5 6 مہینے جو نہیں وہ پہلے ممبر بنتے ہیں، ان کو وہ جو نہیں بس ایک کلا پہننا ہوتا ہے کہ جی ہم کونسلر ہیں. ان کو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی، اور میں اس لیے کہوں گی کہ میرے پاس 16 12 سال کا تجربہ ہے اس چیز کا، مطلب پریکٹیکلی. تو اس میں ظاہر ناکامی ہونی ہے. پھر پارٹی کہتی نہیں تم نے ہمارے سے بات نہیں کی ہے، وہ پوری بات تو بتاتے نہیں نا، بس یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جو ایشو کرنا اس کے ساتھ نا کمبل کی طرح چپک جائے. اب جیسے میں چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں تبدیلی ہو مادری زبان کی، اس کے اوپر میں نے پچھلے سال سے کام کرنا شروع کیا ہے. ساتھ ہم نے انیس لسٹ کو ملایا، یعنی پچھلے سال جس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پارٹی کے اندر جتنی آپ کی وہ کیا کہتے ہیں بیریئرز ہوتے ہیں، لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ محسوس کریں کہ یہ لبنہ الہی کا ایشو نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کے وہ کیا خیالات ہیں. ہم جو نہیں، جیسے میرا ایک موقف ہے بہت سالوں سے ہے کہ مادری زبان کی تعلیم کے لیے ہم لوگ پیسے کیوں دیں؟ کیا ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ جبکہ ایک شہری کی ضروریات کے مطابق اس کو اس کے ٹیکس کے پیسوں سے علاج کی سہولت ہو، اسکول کی ہو، سب ملتی ہے. یہ مادری زبان کی تعلیم کے پیسے ہم کیوں دیں؟ میں پچھلے 12 سال سے اس پہ کام کر رہی ہوں، اور ہر دفعہ جو نہیں ہے وہ نہیں، اس کے لیے ووٹ نہیں کافی آتی. لیکن میں سوچتی ہوں کہ نئے لوگ آئیں گے، ینگ لوگ آئیں گے، وہ اس چیز کو سمجھیں گے تو کبھی نہ کبھی تو یہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ہوگا. مادری زبان کے حوالے سے یہ میرا ہے کہ جی اس کو ہر کمون میں ہونا چاہیے. اور لٹرلی جھوٹ بولتے ہیں وہ کونسلر جو کہتے ہیں جی یہ تو پارلیمنٹ کی طرف سے ہے، پھر انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے. پارلیمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے ہر کمون کو، پہلے 4 گھنٹے ہوتے تھے، اب 3 تعلیمی گھنٹے ہیں، لیکن اس کے پیسے وہ اس کمون نے اپنے بجٹ میں سے نکالنے ہوتے ہیں. میرے اور آپ بچے پیسے دے کے کیوں پڑھیں؟
वो क्यों महसूस करें कि जी नहीं हम तो ये कर रहे हैं तो हम वो कर रहे हैं। हाँ, जब उमडम्स क्लब में जाते हैं, उमडम्स की वो स्कूल होता है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो ये जस्ट मैंने तो ना इलेक्शन लड़ना है या मतलब ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन आपको एक समझाने के लिए ना, मुझे 12 साल हो गए हैं कि नहीं हमने पैसे नहीं देंगे 5वीं के बाद। एक फैमिली के 4 बच्चे हैं, वो कहाँ से देंगे साल के 6,000 क्राउन? पता नहीं, लगभग 2,000 पर बच्चा लेते हैं। तो ये बहुत एक उसको वो बनाने के लिए क्या कहते हैं कि वो एजेंडे में आए, उसके बाद कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। ये सारे मामलात पहले तय होने चाहिए कि आपको पता हो कि ये थ्रू हो जाएगा। अदरवाइज आप उसको विड्रॉ करें और उसके ऊपर काम करें। अब हमारे साथ यानी हमारे मीन रेडिकल के साथ इनिस लिस्ट जो नहीं है, बड़े दिलो जान से काम कर रहे हैं, तो हम हर जगह उनका नाम भी लेते हैं। जैसे पिछले इलेक्शन के पीरियड में रेडिकल की कोई सीट नहीं थी इसमें तालीम की जो कमेटी है, तो हम उन्हीं के थ्रू अपना काम करते थे। हम उस कमेटी से निकल के मीटिंग्स करते थे, एजेंडे डिस्कस करते थे, लेकिन उसको प्रपोज वही करते थे। अब हम इसी चक्कर में पड़ जाते, नहीं नहीं ये तो हमने की है। हालांकि सारी मूवमेंट जो नहीं है रेडिकल की, रेडिकल का अब कहा जा सकता है कि मेनुसरीन के जमाने में सोशल डेमोक्रेट टोटली इसको खत्म करना चाहती थी। अल्लाह उसको इसका अजर दे। मैं तो हर साल उसको याद करती हूँ, हर साल उसकी सलामती के लिए दुआ करती हूँ। मैं नहीं सोचती वो हिंदू है या नहीं। मेरे पाकिस्तानियों के लिए ना, मेरे पाकिस्तानी बच्चों के लिए उस शख्स ने लड़ झगड़ के 5वीं तक तालीम मंजूर करवाई थी। ये 15-20 साल पहले की बात है, लेकिन मैं हर साल उसको न्यू ईयर का वो सलाम भेजती हूँ और उसको उसकी हेल्थ के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मेरी आवाम के लिए, मेरी कौम के लिए तो उसने बहुत अच्छा किया। तो ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए या सुनने लुबना वालों को इसका समझाने। मतलब है कि सिटी काउंसलर काम करना चाहे तो काम कर सकते हैं, ये आपने बताया। इसी तरह रीजन का मेंबर होता है, काम करना चाहे तो ये कर सकते हैं। चूँकि पावर ज़्यादा होती हैं, जो पावर ज़्यादा होती हैं काम भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली भी होती हैं। इसमें तालीम का बड़ा रीजन का जो मेंबर होता है उसमें ज़रा सिटी काउंसलर से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, और बड़े हाई लेवल पे थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है। क्या ठीक है मैं कह रहा हूँ? ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड है। अभी जो नया सिलसिला है, इसका तो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन एक सिटी काउंसिल मैं कहूंगी कि वो एक ऐसा सिटी काउंसलर, आप यही समझे कि वो आपका स्कूल एक होता है, आप वहां से चीजें लर्न करते हैं। अगर मैं अपने ख्याल में देखूं कि आप डायरेक्ट रीजन में होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पहले 4 साल आप उन चीजों को सीखने में गुजारते हैं, आपको समझ नहीं आती। और तीसरी जो सबसे अहम और बेसिक बात है कि हाल के अंदर या किसी एजेंडे में अपना नाम, अपने कोई सजेशन पेश करनी, आपकी पार्टी के अंदर जब तक आपके हम ख्याल 4 लोग नहीं होंगे, आपके ख्यालात को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप 20 साल भी बैठे रहे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पार्टी की सपोर्ट की जरूरत है। और मतलब सिर्फ डायरेक्ट हो जाना, पार्टी की मीटिंग्स में ना जाना। अभी एक वेस्ट आइन का एक किसी के साथ मैं बैठी हुई थी, तो वो उनके कोई काउंसलर साहब है, वो 1.5 साल हो गए इलेक्शन से पहले जो नहीं वो गए ही नहीं थे। तो ये कि लुबना क्या बेसिक बात तौर है, पे हम जो पार्ट गैर मुल्की हैं इलेक्शन लड़ते हैं और सिटी काउंसलर बनते हैं, फिर साथ ही हम डिप्टी मेयर मेयर की तरफ देखने के शुरू कर देते हैं। अभी हमारा वो काम मुकम्मल नहीं होता तो हम जो है वो पार्लियामेंट के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, रीजन के मेंबर बनने के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बिल्कुल खबर दे रहा हूँ कि इस दफ़ा बहुत सारे कैंडिडेट ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि हम ये पार्लियामेंट का जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कोई कोई शक नहीं है कि वो कानून में मेहनत करते हैं। ये नहीं कह सकते कि मेहनत राय नहीं साहब, करते। एक बड़ी देखें, एक बड़ी सिंपल सी बात है, हमने डेनिश पार्टियों को ये लॉलीपॉप देना शुरू कर दी है कि हम आपको वोट हासिल करके दे सकते हैं, और हम करते भी हैं। लेकिन हम उनसे बदले पहले मामला तय नहीं करते। मैं इस साल फिर सबको खुलेआम दावत देती हूँ, मेरे साथ बैठो, कुछ मेरे से चीजें सीखो, कुछ ये जो तुम्हें 4-5 साल लगे शायद कभी सीख भी ना सको। तो एक दिस इज द वे टू हाउ टू प्ले द गेम। आप अपने पाकिस्तानियों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखते इलेक्शन जीतने के बाद।
हाँ, शायद एक कदी कोई जीतने की दावत दे दी तो? यानी आप उसकी जीतने वाले उसकी ज़िम्मेदारी ही नहीं समझते कि हम इन लोगों के वोट लेके आए हैं, इन तक पहुँचना, इनके साथ डायलॉग करना हमारे लिए बहुत अहम है। इलेक्शन होते हैं तो हम वो अंगड़ाई लेके एक सिंड्रेला की तरह उठ जाते हैं। ओहो! 14 नवंबर आ गई, आने वाली है, 2 महीने पहले जी मैं ये करूँ। और ये मैं बात किसी की ज़ात पे नहीं कह रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने 10,000 दफ़ा कहा है ये, बल्कि किसी एक कैंडिडेट का मुझे गिला भी आया। मेरी तरफ से कोई अंगूठा छाप हो, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे वो लोग चाहिए, जो अपनी कौम का दर्द रखते हों। अभी जो है डेनमार्क में नहीं कोपेनहेगन में जो सीनियर सिटीजन के पाकिस्तानियों के लिए क्लब है, वहां पे एक दो जगह दो पाकिस्तानी बैठी हुई हैं, तो वो जी अपनी सहेलियों को अपने दोस्तों को बुलाते हैं, तो मैंने लिख के भेजा है भाई वहां पे तुम एक स्कैनर लगाओ, जो भी अंदर आए सिक्योरिटी कार्ड पे देखो कि वो कोपेनहेगन के रिहायशी हैं भी या नहीं। उनमें से एक ने मुझे फोन किया, बाजी आपने बड़ी दफा इतराज किया, आपने तो नहीं कुछ किया। मैं कहा जी बिल्कुल मैंने किया। क्यों? भाई क्यों? आपका काम है सिर्फ वहाँ को उसको वो जिसको कहते हैं एक कमरा खोला, एक जगह खोली, उसके अंदर जो है आपने जो बंदे आते हैं उनकी उसकी हाजिरी नहीं मैं कह सकती, उसको स्कैन करें। और ये सहूलत सिर्फ कोपेनहेगन के शहरियों की है, जिसमें मेरे टैक्स के पैसे भी जाते हैं। लेकिन मैंने 3 खवातीन को आपके पास भेजा, आपने कहा जगह नहीं। जब मुझे पता चला कि जी वहाँ तो ग्लैड सक्सेस से तो आगे पीछे पता नहीं क्या वो पंजाबी नहीं कहते खच खाना है, तो ऑफ कोर्स मैंने रिएक्ट करना है। 3 क्लब है गालबन, एक उधर है कहीं वेस्ट ब्रो में है, एक ज़रा नैरो ब्रो में और एक तीसरा कहीं है। तो वहाँ पे एक दफ़ा सुना मैंने, क्योंकि लोग तन्हाई से बहुत अक चुके हैं। बच्चे चाहे घर में हों, तब भी उनके पास टाइम नहीं है, या वो बात करना ही नहीं चाहते, या उन्होंने अपने वक़्तों में देखा ही नहीं कि अपने घर वालों से बात करते हैं। देखिए, जिस तरह आप बच्चों की तरबियत करते हैं ना, वो सामने आता है। अगर उन्होंने देखा होता अपनी माँ या बाप को कि बच्चों के सामने वो हर संडे को पुराने वक्तों में टेलीफोन पे बात कराते, उन्हें पता होता कि अच्छा ऐसा बात भी करते। जब आपने बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं, तो आप डैनिश माशरे को क्यों मुद्रे इल्जाम ठहराते हैं? मेरा नेबर एक डैनिश है, उसकी बीवी पोलिश है। तो वो बाबे की बीवी जब मर गई तो मैं कहा ये तो अकेला रह जाएगा। और वहां पे ना मुझे मेरे ज़हन में था ये डैनिश है, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। यकीन करें, वो जो पोलिश उसकी बहू थी, उसने बाबे को दोनों सब फूलों की तरह नहीं हाथ में उठा के रखते। नहीं, नहीं, फ़ा को मिर्चों वाली चीज़ पसंद नहीं, नहीं वो यखनी खाएगा, उसमें एनर्जी आएगी। मैं तो हक्की-बक्की रह गई। मैं कहा ये गोरी औरत है। घर में कुकिंग करनी काम के बाद जो नहीं है, ये जो हेल्दी कुकिंग्स होती है, आहिस्ता-आहिस्ता पकने वाली, राय साहब उसके लिए टाइम लगता है। और मैं अपने दिल में बड़ी शर्मिंदी हुई। फिर एक दिन मैंने उससे कहा कि चलो मेरे साथ बाहर पीने कॉफ़ी चलो। तो आए तो मैंने कहा कि सबसे पहले ना कि मेरे ज़हन में था ये पक्का कि ये तो सिर्फ़ पाकिस्तानी, अरबी या मुसलमान ही करते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी सोच पे, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा था। मैंने उसको कह दिया था कि आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने तुम मेरे लिए ना वो डेनिश में एक लफ्ज़ कहते हैं फोड़ो, या आपने अपने तय फैसला किया होता है। लेकिन हम यहाँ के माशरे में रह के स्टेट की जो पाबंदियाँ उसकी हमारे पे मज़हबी तौर पे देखें ये लागू है कि जो मुल्क तुम्हें रोटी देता है हम उसके वफ़ादार हों। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। लेकिन हम हर तरीके से डेनिश स्टेट को धोखा देने की कोशिश करते हैं। मतलब जहाँ भी हमें मौका मिलता है ना, तो मैं इसका ऐसे करती हूँ कि पाकिस्तान में जब लाइनमैन आता है, तो वो उसको या आता था, मुझे नहीं पता वो आता है या नहीं, तो उसको 4 पैसे लगा के तो जो नहीं है अपनी बिजली फिट कराई, अपना बिल कम करवाया। इसी तरह मैं जब पाकिस्तान जाती थी तो हम 3 बहनें हैं, 3 वो हमारी भाभी हैं, तो ज़ाहिर है ना करते भी 2-2 जोड़े भी सबके लिए तो बन जाते हैं। तो मैं हमेशा कहती थी मुझे रसीद दो कार्बन वाली। तो वो मैं कपड़ा खरीदती थी चाइना मार्केट से, तो वो कहते कि नहीं बाजी ये कार्ड के पीछे ना, तो मैंने फिर कहना कि फिर मैं आपसे नहीं चीज़ें खरीद सकती। नहीं आपको क्या फ़ायदा है? तो मैं हमेशा कहती थी मुझे ये फ़ायदा है कि मेरे दिल को तसल्ली है कि मेरे मुल्क से मेरी जेब से मेरे मुल्क को 4 पैसे टैक्स के जाएँगे। ये जो आप कार्बन वाली रसीद बनाते हैं ना, ये मतलब मुझे पता है कि आप कार्ड पे क्यों लिख के भेजे, मैंने आपसे कोई चीज़ ही नहीं खरीदी। तो आपको हर अच्छी चीज़ अपनी ज़ात से शुरू करनी चाहिए। डेनमार्क में बहुत-बहुत कुछ होता है कि लोग बुरा मनाते हैं अगर उनसे रसीद माँगो या उनसे पूछो कि तुमने फलानी
रकम जो है वो कौन से बैंक में भेजी है, वो उसको पर्सनली लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते हैं जो अच्छाइयाँ, बुराइयाँ रखते हैं, और हमें कबूतर, बिल्ली क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। लुबना आपके देखें, ये सारी बातें जो आप कर रही हैं, आपके पास 40-45 साल का तजुर्बा है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप ये बातें कर रही हैं, जिसने ये सारा प्रोसेस देखा ही नहीं है, उसको आप ये बात किस तरह समझाएंगे? जिस तरह हम बात करते हैं, आप टाउन हॉल में बैठी रहीं 12-16 साल, फिर मुख्तलिफ कमेटियों में, फिर भी टच रहीं स्कूलों के साथ, स्कूलों की कमेटियों के साथ, तालीम से आप वाबस्ता हैं, उर्दू की तालीम के लिए आप कोशिश करती हैं। ये सारे प्रोसेस आप करती रहती हैं, और फिर लोकल तंजीमात की तरफ भी आपका ध्यान रहता है, लोकल जो हमारी सियासत होती है उस पर भी आपका जो नज़र रहती है, बल्कि बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा भी लेती हैं। कोई बुलाता है, जहाँ बुलाता है आप जाती भी हैं। तो जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है लुबना, वो उसको समझाने का क्या तरीका होना चाहिए? राय साहब, कोई किसी को समझा नहीं सकता। वो कहते हैं ना, क्या एक मैं मिसाल दूँ? हाँ, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जिस मतलब जो चीज़ आपको पसंद है, आप सीखना चाहते हैं, कोई बंदा नहीं आपको रोक सकता। मुझे दिलचस्पी थी सीखने के लिए, इसलिए मैं सीखती गई। फिर वहाँ से आप कहते हैं अच्छा फिर ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेरे पास तो मोर देन फुल टाइम जॉब है ये। मुझे तजस्सुर रहता है, मैं सुबह उठ के जो नहीं अपनी चीज़ें सुबह के टाइम 6 बजे से लेके कोई 9 बजे तक वो मैं अपने लिए होती है। मैं अपना शेड्यूल बनाती हूँ। मेरी ज़िंदगी शेड्यूल के बगैर बिल्कुल नहीं गुज़र सकती। मैं टाइम की बड़ी कदर करती हूँ। जिसको टाइम की कदर नहीं, ही और शी इज़ नथिंग। मेरी ऐसे लोगों के साथ कोई उठक-बैठक दोस्ती नहीं हो सकती, जो मतलब मेरे इस चीज़ की कदर ही ना करे कि फलाना बंदा वहाँ पे मेरे इंतज़ार में है। चलो 2-3 मिनट, लेकिन मैं 10 मिनट से ज़्यादा कोई मेरी किसी की आउट हेलो ना आए तो मैं चली जाती हूँ वहाँ से। मैं मुझे कोई परवाह नहीं कि वो किसी मुल्क का सदर है या जो कुछ भी है। मुझे इस चीज़ की परवाह है कि मेरे पास अब जो कुछ के लिए ये काम करने के लिए, ये बातचीत करने के लिए मैंने 1 घंटा रखा था। चूँकि उस बंदे ने तरजीह नहीं दी, तो फिर मैं पूरा दिन 10 मिनट हर चीज़ में लेट हूँगी। तो जो मेरे लिए जो अगली मेरी आउटसेल है, इसमें उन बेचारों का क्या कसूर है? कुछ लोग कहते हैं जी वो नकचड़ी है, ये उनकी चॉइस है। मुझे मतलब मैं टाइम पे, जैसे मुझे कोई कहता है कि जी आपने 2 बजे मिलना है, तो मेरा दिमाग मुझे कहता है आपने 2 बजने 10 मिनट में वहाँ पहुँचना है, आपने कोट उतारना है, अपना ये करना है, मेबी वॉशरूम जाना पड़े, 2 बजे आपने अपना काम शुरू करना है। मैं 2 बजे वहाँ आती नहीं, मैं 2 बजे से पहले आती हूँ, क्योंकि 2 बजे हमने जो कुछ भी बातचीत, पेपर जो करना है। तो ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर में भी खुद लागू की हुई हैं, लेकिन मेरे घर में मैं जिस घराने से हूँ, वहाँ हमें बड़ी सज़ा मिलती थी। वक़्त पे हम जो भी हमारी माँ-बाप के साथ होती थी, नहीं करते थे। लुबना, आपका टीम टाइम कीमती है, हमारे 2-3 सवाल हैं, इसको हम जल्दी क्लोज करेंगे, मुझे पता है आपने कहीं जाना है। जी, लुबना, कम्यून की बात करते हैं, आजकल जो अखबारात में खबरें छपती हैं, ज़ाहिर है खबर छपती है जो हमारी दिलचस्पी की होती है, गैर मुल्कियों की दिलचस्पी की होती है, और ख़ासकर पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में होती है, तो वो पढ़ते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, सीना गज़ट पे छपती भी हैं। लुबना, आप बताएं, अभी जो सिकंदर सिद्दीक हैं, फ्री कोरोना के वो बने जो कैंडिडेट थे, पार्टी उनकी अपनी, उन्होंने खुद ये पार्टी बनाई सबके साथ मिलकर, और उन्होंने ये इलेक्शन जीता, सिटी काउंसलर बने। उसके बाद आए दिन अखबारात में कोई न कोई चीज़ चलती रहती है। पिछले दिनों वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि चंद दिनों के बाद हो सकता है मुझे फारिग कर दें, और उसके बाद ये केस आगे चलेगा, फिर साल बाद शायद मुझे बहाल भी कर दें। इस तरह की बातें जो चलती रहती हैं। लुबना, आपका ज़िंदगी का तजुर्बा क्या कहता है? राय साहब, सबसे पहली जो नहीं है कि सिकंदर को मैं बचपन से जानती हूँ। सिकंदर के वालिद के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, सियासी ताल्लुकात। और मैंने ये देखा है, मुझे याद है जब ये काउंसलर बना था पहली दफ़ा, आप उसे कन्फर्म कर सकते हैं, तो मैंने ये कहा था, "बेटा जाके अपनी तालीम मुकम्मल करो।" ये 4 साल काउंसलर रहा था सोशल डेमोक्रेट की तरफ। फिर एक दिन मुझे मिला तो कहता है, "मैं आपकी बात पे कर रहा हूँ।" मैं कहा, "बेटा बिल्कुल ठीक कर रहे हो।" तो जिस इंसान को आप बचपन से जानता हूँ, तो मुझे थोड़ी-सी तकलीफ होती है, दुःख होता है कि इसको छोड़ दें कि आप उसके ताल्लुकात से उसके ख़यालात से मुत्तफ़िक हैं या नहीं है। लेकिन इस चीज़ से तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि इसने अपनी ज़िंदगी के 8 साल, ठीक है? जब 4 साल ये वो क्या था, कौन-सी पार्टी थी थले वहाँ से जब इसने इलेक्शन सोशल जीता था। डेमोक्रेट, नहीं, ये पार्लियामेंट का। ये पार्लियामेंट की थी इनकी जो है ना, ये फ्री कोरोना बनाने से पहले जो था ना, उनकी जो थी अल्टरनेटिव। हाँ जी। उसके बाद फिर 4 साल इसने अकेले किया, 8 साल हो गए ना।
اس عمر میں اپنے 8 سال اس طرح جس میں آپ کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرے نظر ایک ینگ انسان جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ٹائم نکالنا بچوں کو دینا، کہ جس کے پیرنٹس بیچارے جو نہیں، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کے صحت کے ایشوز رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو پورا کرنا نا، تو مجھے پرسنلی لیول پہ جو نہیں، مجھے میرے لیے ہمیشہ میں اس کے لیے خیر خواہ ہوں، اسکندر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، اعلیٰ مقام پہ لے کے جائے۔ پھر بات آتی ہے جو اخباروں میں لکھتے ہیں، دیکھیں میری جتنی بھی یہ سیاسی زندگی ہے، میری نظر سے پہلے اس قسم کا کیس نہیں کبھی گزرا، تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ یا تو نا مجھے سب کچھ پتا ہو تو پھر میں رائے دے سکتی ہوں۔ مجھے تو اتنا ہی پتا ہے جتنا جب پہلی دفعہ یہ ہوا تھا، اس وقت میں نے اسکندر کو فون کیا تھا اور ایک رائے دی تھی، تو اس کے بعد میری اسکندر سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے اتنا ہی دیکھا ہے جتنا، کیونکہ معاملہ جو نہیں بڑی ایک نازک نوعیت کا ہے، اس میں میرے جو اسکندر کے ساتھ ایسے فیملی تعلقات ہے، میں نے ان کو ترجیح دی ہے، کیونکہ وہ تعلقات 30-35 سال پرانے ہیں اس کی فیملی کے ساتھ نا، اس کے ابو کے ساتھ، تو میں اس لیے میں اجتناب کرتی ہوں اسکندر کے یہ جو ساری سیاسی کہانیاں ہیں ان کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے۔ ہاں میں نے پرائیویٹ اس کو ضرور فون کیا تھا، تھوڑی سی ہماری چھوٹی سی گفتگو ہوئی تھی، اس وقت پتہ نہیں وہ TV 2 جا رہا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے اور اس کے راستے صاف کرے۔ چلیں لبنہ، یہ جی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ لبنہ ایک آتے ہیں جو ہماری لوکل یہ تنظیمات ہوتی ہیں، سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو خاص کر پاکستان سے ریلیٹڈ پارٹیاں ہوتی ہیں، ہر آنے والا ایمبیسڈر یہ کہتے ہیں، ہمارے چینل پر بھی آ کر کہتے ہیں، جب ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین بھی پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سیاست ضرور کریں، یہاں کی سیاست کریں، ڈنمارک کی سیاست کریں، ڈنمارک کی سیاسی جماعتوں کی سیاست کریں، پاکستان کی سیاست کرنی ہے تو وہ ان پر چھوڑ دیں یا وہاں جا کر کریں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان پارٹیوں کے ہم ممبر بھی بنتے ہیں، عہدیداران بھی بنتے ہیں، پھر وہاں کے لیڈر ہمیں پوچھتے بھی کوئی نہیں ہے، جب آتے ہیں وہ اپنا کام بڑھا کر چلے جاتے ہیں، تم صدر ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہے۔ ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، سارے دنیا میں وہ گھومتے ہیں، سیاستدان جو ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہاں جا کر وہ ہمارے لیے تو کچھ کرتے نہیں ہیں، ہر وقت ہم ان کے لیے کرتے رہتے ہیں اور آپس میں ڈیوائڈ ہوتے رہتے ہیں۔ ایز اے یہ تجربہ یہ کار یہ سٹی اس کونسل میں کیا نا، کہیں گی؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پاکستان کی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا بہت عمل دخل، بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جب بے نظیر بھٹو کا وقت تھا تو میں نے ان کو کافی حد تک مائل کیا تھا کہ جو ترکی کا جو ماڈل ہے، جہاں ترکی کی عوامی پارلیمنٹ ہے، نیشنل پارلیمنٹ، وہاں پہ جس طریقے سے اوورسیز ترکیز کو سیٹس دی جاتی ہیں، کچھ اب تو اتنا عرصہ ہو گیا مجھے تو ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کیونکہ آپ پاکستان میں ہمارے پیسے کے بغیر چل نہیں سکتے، تو ہمیں انفلوئنس کیوں نہیں ملا؟ ملنا چاہیے۔ یہ مطلب یہ 20-25 سال، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اس چیز کو نا بات کیے۔ باقی یہاں پہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں بالکل ہونا چاہیے۔ ڈینمارک میں 20 لوگوں کو پتا ہوں، وہ کیا ڈینش ہے، وہ اس کی امریکہ کی کانگریس پارٹی کے ممبر ہیں یا کسی دوسری پارٹی کے ممبر ہیں۔ اس میں کوئی، میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس کو اس طرح کٹیں۔ اور دوسرا، پاکستان کے امبیسڈر کا کیا کام ہے اس میں مداخلت کرنا؟ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ ایک بندے کو ڈینش آتی نہیں، وہ ڈینشوں سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو آپ اسے ذہنی مریض بنانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا ہی بند کر دے؟ دیکھیں، ایک 4 بندوں میں ملتے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو چاہے جو بھی ہو، ان میں دوستیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، اس سے بھی نکلتے ہیں، دل کی پڑا سے بھی نکلتے ہیں، شادیوں میں ایک دوسرے کو بلاتے بھی ہیں، تو میں اس کو ایسے سوشلائزیشن دیکھتی ہوں، کیونکہ اگر یہ لوگ یہ نہیں کریں گے جو ان کا کرنے کا دل کرتا ہے، تو ڈینش سسٹم تو ایسا کوئی نہیں ہے، وہ ایک کمرہ ان کو دے دیں گے، جی یہاں تم 100 کراؤن سال کا دے دو، آ کے جو نہیں ہماری بک بک سنو، لیکن وہ جو دل کی بات ہے وہ کس کے ساتھ یہ کریں گے؟ مجھے ذرا اس کا جواب دیتے۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم ڈینش معاشرے میں کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ امبیسی کا ایک رول ہے، میں امبیسی کا احترام کرتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں، میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ جب بھی کوئی امبیسڈر آتا ہے، جیسے کسی کی خبر ایک
छपी हुई है जी कि उसके दफ्तर से इतनी गैर कानूनी फर्में निकली हैं। 2 दिन बाद देखिए हमारे वो एम्बेसडर साहब उसके साथ घूम फिर रहे हैं। मैं इस पे बड़ी सरप्राइज़ होती हूँ कि आजकल मुझे कहीं से खबर मिली है कि ये जो फंड रेज़िंग की चीज़ें हो रही हैं, कोई क्या करता है, क्या करता ये है। मैं आपसे उसमें सवाल करूंगा, आपने बड़ी जी, दिलचस्प बात की है, किसी के दफ्तर से तंजीमें निकली हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं राय साहब, नहीं आप मैं आपको बताऊँगी भी नहीं, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी था, उसके दफ्तर से अ अ, क्या कहते हैं, टैक्स का और मम्स का धोखा था, 6 के 7 फर्में, ठीक है ना? लेकिन एम्बेसी के वसाइल होते हैं कि उन्हें पता चले कि कौन बंदा माली बदनमानी करता है या नहीं करता, ये उनका काम है। चलें लुबना, आगे चलते हैं। लुबना, लेकिन आप मेरा दिल सोशल इस चीज़ से हमेशा खौफ़ज़दा रहता है कि अब खबर छपी या अब खबर चली कि और उसमें पाकिस्तान का नाम होगा, जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। चलें, ये जब कानून पर चली की बात कानून पे छोड़ देते हैं। लुबना, आते हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं, हमने देखा कि आप डोनेशन भी करती हैं, मेहनत भी करती हैं, लोकल ख़वातीन की तंजीमात के साथ भी टच रहती हैं, ख़वातीन के साथ भी रहती हैं, अपनी पाकिस्तानी सियासत के साथ भी। डैना सियासत तो खैर आप करती करती हैं और बहुत कुछ करती रहती हैं, इसके अलावा भी फंड रेजिंग के लिए खुद भी डोनेट करती हैं, अपनी फैमिली के लोगों को डोनेट करती हैं, और बाकी जो हैं बड़े जो चैरिटी शो होते हैं उनको भी डोनेट करती हैं। तो कुछ अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ कि कल भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और आप नज़र नहीं आई, कोई खबर आपकी नहीं है। लोग पूछते हैं हमसे कि लुबना कहाँ क्यों नहीं जाती इन प्रोग्रामों में? राय साहब ये कहानी मैं अब यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगी कि 2 या 3 साल पीछे जाती है। मैंने जितने मैं कभी छोटी डोनेशन ये 1000-500 की नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो पैसे देने थे मैंने उसके लिए बैंक अकाउंट माँगा। कहते हैं जी बैंक अकाउंट तो है नहीं है। फिर मैंने उसके बाद कहा कि जी जो आपके अखराजात लगे हैं और जो आपकी इसमें आमदनी हुई है, आप नेट पे लगा दें, अपने नेट पे रख के टिकट भी तो बेचिए ना। ये 1 साल हुआ या 2 साल हुआ, तो इस सारी चीज़ को जो कि हमें यहाँ की हुकूमत इजाज़त नहीं देती। आपने ये जो गल्ले नहीं होते यूले में आके ये इनकी जो प्लास्टिक के होते हैं, उसके लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो मैं किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती, जिसमें क्लियर क्लियर ना दिया जाए कि हम इसका हिसाब कहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है? नेट पे लिखा जी फलाना टिकट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। एक तो ये बात है क्योंकि इसको मैंने पिछली दफ़ा जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था समझाने के लिए, तो बड़ी मेरे पे वो बातें की गई, तो लिहाज़ा इसको मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं। इसको यही कहते हैं कि यानी जब आप किसी चीज़ का हिसाब नहीं देते, तो वो काला पैसा होता है। वो किस ज़रिए से जाता है, किस अकाउंट से जाता है। अब जैसे कि मैं इस वक़्त तक जो मेरी ज़ाती डिमांड है, वो इंडस हॉस्पिटल वाले पूरी कर रहे हैं। मैं उस ग्रुप का खुद हिस्सा हूँ। हमने जब टिकट बेचे थे, एक डेनिश महकमे को दिए थे जिसने 1 या 2% के ज़रिए वो बुकिंग की थी। हमारे हाथ में कोई टिकट था ही नहीं, हमारे हाथ में कोई पैसा ही नहीं था। फिर इंडस ने ये कहा कि जी हमें जो-जो हमें मशीनरियाँ, दवाइयाँ होंगी, हम आपको लिख के भेजेंगे, आप वो हमें भेज दें। वो भी पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहते। मुझे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो मेरी बड़ी हक हलाल की कमाई है। मैं जब तक मुझे किसी डेनिश नंबर का इवन मोबाइल नंबर जो है कोई बंदा या बंदी देती है, तो मैं उससे तो नहीं पूछ सकती ना कि तेरा क्या हिसाब-किताब है भई, ये पैसे किधर जाते हैं? और जब आप बात हिसाब की करते हैं, वो आपका गिरबान पकड़ लेते हैं। और वो भी मुझे कोई डर नहीं है। मेरे गिरबान तक पहुँचने के लिए ना काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन है कि मैं बल्कि लोगों से भी अपील करूँगी कि आपकी जो पैसे हैं डोनेशन के, मज़हबी तौर पे वो सबसे पहले अपने आपके ख़ानदान के जो लोग हस्बे हैसियत नहीं वो बनते हैं, उसके बाद बड़ी तंज़ीमें बनती हैं। और आजकल तो ये सिस्टम है किसी भी तंज़ीम को आप देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जो नहीं है उस तंज़ीम को नेट पे नहीं दें, उनको पैसे भेज दें। फ़िलवक़्त तो जो है 2 लोग हैं, एक मुस्लिम क्या एड है जिसका वो डेनिश है, एडीएम के कुछ इस तरह का नाम है। एमडी डीएमसी। डीएमसी हाँ जी, वो 2 आप उनको भेजते हैं उसी वक़्त वो आ जाता है कि जी आपने इतने पैसे दिए हैं। वो जो कुछ करते हैं उसका हिसाब भी आ जाता है, जैसे उन्होंने कुएँ लगाने हैं, कोई मोबाइल हॉस्पिटल बनाने हैं। इसी तरह इदारा मिनाजुल कुरान है, वो भी मुझे मतलब सेफ लगते हैं। तो मैं ऐसी किसी जगह पे नहीं जाऊँगी, मैं ये नहीं कहती कि आप इसका बायकॉट करें, लेकिन यानी
इसका मतलब है कि कोई भी उठ के जी मैंने तो फंड रेजिंग करनी है। आपकी इस माशरे में एक वो तारुफ होना चाहिए कि आप ये काम करते हैं, आप कौन है, आप अपनी जाती जिंदगी में क्या करते हैं। तो नहीं, मैंने 2 दफ़ा डायरेक्ट उस इदारे को अपने हाथ से भेजी है, क्योंकि मुझे यहाँ का ना हिसाब दिया गया है। और मैं कहती हूँ हिसाब मुझे ना दें, उसके नेट के ऊपर लगाएँ कि इतने पैसे आपके इकट्ठे हुए थे, इतने अखराजात थे। तो ये कोई अनलॉजिकल चीज़ नहीं है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अकेली हूँ ये बातें करती हूँ। क्योंकि एक एक जो आप मिशन शुरू करते हैं, आप अकेले ही होते हैं। मैं लोगों को शऊर देने की कोशिश करती हूँ, जो भी तुम्हारी मेहनत की कमाई है, सबसे पहले अपने खानदान के लोगों को दो। एक दफ़ा मैं एक जगह गई थी, हैप्पी होम के कुछ इस तरह का नाम था। वो कुछ थी, पाकिस्तान की ड्रामा में काम करती थी। अ, इजाज़ उनका नाम था। वो हमारे एक भाई थे, उसके हॉल में काफ़ी पीछे करके बैठे हुए थे। वो उन तक माइक लेके गई हैं। उनको कहती नहीं, नहीं चलें, आप 500 ही क्राउन दे देना, 2 ही से दे देना। मैं हक्का-बक्का, आपको क्या पता वो बंदा, उसने अपना पर्दा कैसे रखा हुआ है। फिर ग्रुप प्रेशराइज़ होता है, फलाने टेबल ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया। तो हमारा मज़हब तो ये कहता है कि जब तुम देते हो किसी को, तो एक हाथ से दूसरे हाथ को ना पता चले। तो ये है कि मैंने मतलब 2 साल, 3 साल इस चीज़ को ट्राई के तौर पे दिए। इनको, बल्कि लोगों को चाहिए कि आप हिसाब दें, आपने ये पैसे किस ज़रिए से भेजे हैं, कितने पैसे थे, आपके अखराजात कितने हुए हैं। किसी चीज़ का कोई हिसाब ही नहीं देना पसंद करता, बल्कि दुश्मन हो जाते हैं, साजिशें करते हैं आपके खिलाफ। मैं तो ये पिछले 2-3 सालों से गुज़र रही हूँ ना, इसमें से। तो मैं बाआवाज़ ऐलान करती हूँ कि आएँ, मेरे साथ शामिल हों। आप एक कमेटी भी बना सकते हैं, जिसमें जो भी फंड रेज़िंग करता है, आप उनसे ये सवाल पूछें। आपका हक बनता है। क्या आप इतने जाहिल और पागल हैं कि आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आपको नहीं पता कि आपने कहाँ देना है? लोगों के सामने देना क्यों ज़रूरी है? और ऐलान करवाना क्यों ज़रूरी है? चलो ये भी मान लिया, क्योंकि इसमें 2 राय है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग ऐलान पे इंस्पायर होके दूसरे लोग भी देते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है या नहीं। मैंने तो जब देना होता है घर से फैसला करके जाती हूँ कि इतना मैं अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा, एक वो नहीं फूस होती है, उसमें डाल देती हूँ बैंक से निकाल के। तो जो है नहीं, आप इस चीज़ का खुद फैसला करें, क्योंकि ये आपकी अपनी ज़ात के लिए इन्वेस्टमेंट है। अब आगे रोज़े आने वाले हैं। मैंने अपनी सारी जो नी मसरूफियात उनको मुलतवी किया हुआ है। उम, मतलब जितना भी मेरे मिलने वाले दे सकते हैं, कुछ के नई वसाइल पाकिस्तान में। मैंने जो कीमत निकलवाई है एक फैमिली के लिए, 1 महीने के लिए, क्योंकि राशन ढेर खरीदना होता है, वो 120 से 110 क्राउन पर हेड बनता है फॉर होल मंथ, जिसमें जो भी रोज़े के महीने में, जिसमें एक चीज़ में मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, वो है रूह अफ़ज़ा का शरबत। मैं क्या कोई जीवन बूटी है, तो वो फिर मेरी, जो पाकिस्तान में कहते हैं बाजी, वो पाकिस्तान में बस एक ट्रेंड है कि जी रूह अफ़ज़ा जो नहीं है वो ज़रूर। मैं कहा चलो अभी मान लेता। उसमें पत्ती, चीनी, आटा ये है। तो मेरे वालिदैन एक मस्जिद बनाई हुई है। सबसे पहले तो हम वहाँ पे वो लगाते हैं कि फलाने दिन आके ले जाओ। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ लोगों को देती हूँ कि जी मेरी तरफ से आप बनाते हैं, ये 1000 क्राउन ले लें, ये 500 ले लें, ताकि एक जगह चीज़ें ना इकट्ठी हों। तो जब तक रोज़े हैं तो मेरी तो फुल जो नहीं उसमें है। फिर उसके बाद ईद आ जाएगी। ईद के बाद फिर हज है। तो अभी इस साल सारी चीज़ें इतनी इकट्ठी हुई हैं कि अगर हम अपने तौर पे अपने खानदानों को इन्हीं चीज़ों का पूरा कर लें, तो मैं कहती हूँ हम सुपर सुपर वुमन या मैन होंगे। इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं मिलती। और बहुत सारी जो तंज़ीमें जो कि यूरोप में रजिस्टर्ड हैं, वो वहाँ की हुकूमतों से भी पैसे लेती हैं। हर घर में कोई ना कोई कंप्यूटर तो है ना। जाएँ उन तंज़ीमों से राब्ता करें, उनसे पूछें, उनसे हिसाब-किताब क्या है, किधर आप हैं, क्या नहीं है। लेकिन नहीं, इतना खाना खाने का, इकट्ठा खाने का शौक है, तो हम किसी रेस्टोरेंट को कह लेते हैं भई पाकिस्तानियों का जो नहीं है, एक अवामी डिनर होना चाहिए, बताओ कितने पैसे लोग हैं। और भी तरीके हैं गेट टुगेदर करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं चलें, इसी बहाने मिल लेते हैं। तो ये भी तो एक तरीका है, किसी जगह किसी बड़े रेस्टोरेंट से बात करते हैं भी तुम हमें 100 क्राउन में, जो कि एक रीजन नहीं कर 120 125 ड्रिंक्स में क्या दे सकते हो। उसके बाद ऐलान कर दे जी आए,
अवामी खाना है, अपने पैसे दें, गपशप लगाएँ, अपने ग्रुप के साथ आएँ। लेकिन वक़्त के साथ जो नहीं है, मेरी सोच ये डोनेशन के बारे में मेरे तजुर्बात की रोशनी बहुत मनफ़ी होते जा रहे हैं। क्योंकि मेरी समझ से ये बालत आ रहा है कि जैसे अगर मैं किसी इस तरह की चीज़ में शामिल हूँ, मैं किसी से पूछने से पहले अपनी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहूँ जी ये हिसाब-किताब है। या जिससे हिसाब-किताब पूछो वो गले पड़ जाता है। तुम्हारी जुर्रत तुमने ये बात की है। और जो लोग वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं, वो क्या कहते हैं फ़नकार या जो कुछ भी, वो तो कुछ पैसे नहीं लेते। उनको तो वहाँ की जो तंज़ीम है वही देते हैं। आपने सिर्फ़ लोकल अख़राजात बर्दाश्त करने होते हैं और जो पैसे बचते हैं वो आपने भेजने होते हैं। इसमें मुझे कोई नहीं समझ आती कि इसमें क्या कबाहत है कि आप डोनेट करने वाले को मुतमईन करें। लुबना ज़रा मैन बताएं आपका एतराज़ क्या है? मेरा इतराज़ ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ें इसमें, क्योंकि इस तरह पैसे जमा करने अब टैक्स के दफ्तर से पता कर लें, वो गैर कानूनी है। मुझे इस चीज़ का हमेशा खदशा रहता है कि जी, वो कहीं न कहीं खबर ना छप जाए कि जी पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैं पाकिस्तान का नाम मनफ़ी अल्फ़ाज़ में बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा जो नहीं है कि जो अगर एक ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हैंकी-पैंकी नहीं, तो आप सोशल मीडिया में उसका हिसाब-किताब क्यों नहीं लगाते? कितना हमारा खर्चा हुआ है, इतनी हमने पाकिस्तान भेजा है और ये भी बताएँ कि किस ज़रिए से भेजा है। तो मेरे ख़्याल में ये गैर कानूनी हरकत है एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मेरा घर, मेरी जगह, ये मेरा मुल्क है और हाँ, पाकिस्तान भी मेरा मुल्क है। मैं नहीं किसी सुर्ख़ी का हिस्सा बनना चाहती कि फलानी जगह जी ये जी गैर कानूनी था, ये नहीं गैर कानूनी था, क्योंकि है ही गैर कानूनी। आपको पैसे देना जब आप जमा करते हैं, आपको इस घंटे से लेके इस घंटे तक इजाज़त है। और फिर बताएँ कि आपने जैसे किसी जगह 2 लाख इकट्ठे हुए हैं, आपने या 3 लाख हुए हैं या 4 लाख हुए हैं, आपने वो पैसे पाकिस्तान कैसे भेजे? मुझे उम्मीद है कि आप मेरा नुक्ता समझ रहे होंगे। लुबना आपकी बात होगी, आप उनको लिख कर भी पूछ सकते हैं, तो सामाइन हमारा मैं तो कौन होती हूँ पूछ ना, 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 ना। मैं कोई जज नहीं हूँ। मैं इसमें सिर्फ़ ये ज़रूरी है कि और लोग भी इस चीज़ को समझें। मैं क्यों उनको समझाऊँ भई? और छुन्ने काकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ। मैंने अपने बच्चों की तरबियत की है, उनको सँभाला है। आपके ज़रिए मैं लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करती हूँ। आगे जिसकी मर्ज़ी है, वो करे, वो ना करे, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो पीछे हट गई हूँ। अब जो जो भी इदारे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको डायरेक्ट भेजती हूँ। मैंने नहीं इन लोगों के ज़रिए भेजा। अब मुझे ये बताएँ हिसाब क्यों नहीं देते? ऑफ़ली हिसाब क्यों नहीं देते? टिकट मुख्तलिफ पेजों पे आता है ना, ये टिकट ले लो, ये ले लो। छुपी हुई तो बात नहीं ना, तो उसी तरह क्यों नहीं आप कर सकते कि ये इतने हमारा खर्चा हुआ था, इतना जैसे खाने का हुआ था, इतने पैसे बचे थे, वो हमने इस अकाउंट के ज़रिए भिजवाए हैं। बताएँ इसमें कौन-सी अजीब बात है? तो बड़ी सीधी-सी बात है। चलें लुबना आखिरी सवाल आपसे है कि इलेक्शन तो ऐलान हो जाएगा आज हो कल हो, लेकिन टाइम पर तो जो है वो इलेक्शन होना ही होने हैं। ये जो आने वाला पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जो लोग अपनी कमर को जो है वो रस्सा बांध रहे हैं कमर के साथ कुएं में छलांग मारने के लिए, सियासी कुएं में, आप उनको क्या मशवरा देंगी? मैं जहाँ तक देख रही हूँ, वो ये हो रहा है कि ना खेडेंगे, ना खेडन देंगे। ना वो खुद बनेंगे, ना किसी दूसरे को बनने देंगे। इसकी थोड़ी ज़रा बड़ी वजाहत सिंपल सी करें, खुलकर बात करें। नहीं, नहीं राय साहब, मेरा ख़्याल है कि मैं हर बात खुल के ही करती हूँ। जैसे एक-एक पार्टी से 6-6 पाकिस्तानी खड़े हुए हैं और वो भी वो पाकिस्तानी जो अभी जीते हैं। पहली सीटों के साथ आपने इंसाफ किया नहीं, क्योंकि उनको अवाम की भलाई की दिलचस्पी ही नहीं। उन्हें इस चीज़ से दिलचस्पी है कि उनके नाम के आगे लिखा हो एमएनए, क्योंकि यहाँ एमपी तो है नहीं। एमपी आप में भी किसी हद तक उसको कह सकते हैं जो रीजन के लोग हैं। आप अपनी कारकर्दगी दिखाएँ, आप हमें बताएँ हम आपने हमारे लिए क्या तब्दीली की है? क्या कोशिश की है? अभी मैंने किसी एक बंदे का नाम ये सुना है जो इनकी क्या कहते हैं हूस्टल की उसमें है गड़िखेल। कल तक उसको गालियाँ दे रहे थे, ये है, वो है, तो पता चला जी उसको टिकट दे दिया है। तो मैंने कहा तुम पागल हो? आगे से जो उसने जवाब दिया ना मैंने कहा अच्छा समझ आ गई। वो कहने लगे जी बात ये है कि पाकिस्तान ना ए अकाइती कूची सामुस्तेमा हमें वोटें चाहिए। ये उन्होंने जवाब दिया। ना किसको पाकिस्तानी किसको टिकट दे दिया रेडी केल ने? और बड़ों को दिया है। राय साहब मैं किसी एक का नाम नहीं लेती, मैंने एक लफ्ज़ सिर्फ़ इस्तेमाल किया था कि जी हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं पड़ता कि किसी ने मास्टर किया या नहीं मास्टर किया। वो लफ्ज़ मेरे गले पड़ गया, हालाँकि मैंने उस इंसान को ये कहा ही नहीं था। मैं आपको याद है मैं पिछले 12 साल से
جو مجھے یاد ہے کم از کم روٹین میں آپ کے ساتھ الیکشن کی بات کرتی ہوں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نے ساری دنیا گھومی ہے، میں نے 2 جگہ نہیں 1 جگہ یہ بات سنی ہے کہ جی یہ ینگ ہے اور یہ پڑھا لکھا ہے، جبکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کے اس ملک کی جمہوریت نے آ، یہ جو یونینز تھیں کام کی جگہوں پہ وہاں سے پروان چڑھی تھی، یہ ٹیلیس مین کا جو سارا حساب کتاب ہے، اور اس ملک کا جو پہلا وہ کیا کہتے ہیں سوشل ڈیموکریٹ سے وہ بنا تھا کافی عرصے کے بعد اسٹیٹ منسٹر، اس کا نام انکا یانسن تھا، جو کہ ایک آبش دگائن تھا، یعنی اس کے پاس کوئی فنی اردن سے نہیں تھا، وہ نہیں ہوتے فیکٹریوں میں یہ تیل لا دے یہ پانی لا دے، وہ یہ کام کرتا تھا، اس کا دل دکھا کچھ لوگوں کے کام پہ، اس نے کچھ باتیں کی، پھر لوگ ڈرتے تھے ہماری نوکریاں نہ چلی جائے، اس نے کہا میں ٹیلیس مین کا الیکشن لڑوں گا، آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز، وہاں سے جی وہ پھر انہوں نے سسٹم نے بھی اس کو ایون اس کے پاس بورڈ کا ایگزام نہیں تھا، 8ویں جس کو کہتے ہیں، ساری تعلیم اس کی سیاسی زندگی میں کیسے لکھتے ہیں کیسے بولتے ہیں بعد میں ہوئی تھی، اس لیے میری ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی بڈھا ہے کوئی جوان ہے کوئی زنانی ہے کوئی ان پڑھ ہے، ہاں میرے لوگوں کے لیے وہ کچھ سوچے، یہ فرق کرتا ہے۔ تو نا یہ جو جمہوریت کے فریڈم فائٹر ہیں جو باہر کے ممالک میں جو جمہوری حق ملا ہوتا ہے اپنا جمہوری رائٹ استعمال کرنے کا، یہ جا کر اپنے ملکوں کے لیے تو نیشنلٹیز کون سی اٹھائی ہوتی ہیں، حلف کون سا اٹھایا ہوتا ہے، اور اپنے اپنے ممالک سے جہاں سے ہیں ان ملکوں کے خلاف ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، اپنی اسٹیٹ کے خلاف ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، یہ کیا جمہوریت کا فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے یا کہ واقعی یہ جمہوریت پسند آپ لوگ ہیں؟ کس کی بات کر اب آپ کھل کے رائے صاحب بات کریں کس کی میں طرف بات آپ کے کر رہا ہوں کہ جو اکثر ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پی ٹی آئی والے نے فلاں کی ڈیمونسٹریشن کی فلاں جگہ کی، آزادی کے لیے کی، اپنے لیڈر کے لیے کی، تو کیا یہ اتنے جمہوریت پسند ہیں جن ممالک میں آپ خود رہتے ہیں ان کو جمہوریت نظر نہیں آتی؟ رائے صاحب اس کا ڈینش نیشنل یا نہ ہونا کوئی بات نہیں ہے، اب پاکستان میں ایک خاتون ہے معروف بلوچ، ٹھیک ہے نا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اب سے نہیں ہو رہا بڑے لمبے عرصے سے ہو رہا ہے، تو جہاں تک مجھے نظر آتا ہے تو اس میں زیادہ پی ٹی آئی کے پاس تو اور فی الوقت کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہ انسانی حقوق کا جو استحصال کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں، اور میری اس کے لیے ڈینش نیشنلٹی ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے، اب جو اس ڈیمونسٹریشن میں شامل ہوتے ہیں ان میں وہ اس ایج کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو ڈینش نیشنلٹی کے لیے کوالیفائڈ ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہے کہ فوج کو گالیاں دینا میں اس کو باواز اس کی مذمت کرتی ہوں، جو فوج میں اکا دکا ہے آپ ان سے ان کی ان کو جو مرضی کہہ سکتے ہیں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، میں نے کبھی بھی اپنی جو امبیسی کے سامنے ڈیمونسٹریشن ہوئی ہیں میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میں ہمیشہ اپنی سپیچ شروع کرتی ہوں کہ میں اپنی ماں کے پاس آئی ہوں، امبیسی میرے لیے بہت محترم ہے، اگر یہاں نہیں جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، میری اب پرانے جتنی مرضی دیکھ لیں، کیونکہ یہ اپنے اس سارے سلسلے کو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں جو آپ کا سامنے کھڑا ہے اور آپ کے حقوق کا استحصال کر رہا ہے یو وانٹ ٹو بی کہ اس کے ساتھ آپ کا ڈائلاگ ہو، گالیاں دینے سے آپ سمجھتے ہیں ڈائلاگ ہوتے ہیں، آپ آکسی وہ ہوں گے تو آپ جمہوریت کے زیادہ وہ ہیں دیوانے ہیں، نہیں، قائد اعظم نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ ایک بندے نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اپنی ٹھنڈے دل سے، انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ مارو پھاڑو جلاؤ یہ کرو وہ کرو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ ممکن ہے، اور میں نے ڈینش سیاست میں یہی چیز سیکھی ہے الحمدللہ، اور میں اس کا بہت استعمال بھی کرتی ہوں کہ جتنا تم چاہتے ہو کہ میری بات کو سنیں یو شوڈ بی اے گڈ لسنر، ادروائز آپ سیاست کے ارینے میں سروائیو نہیں کر سکتے، جب آپ ہی یہ پاکستانیوں کی ایک عام سی ان کا طرز گفتگو کا ہے نہیں میری بات سنیں، تو میں نے کچھ عرصہ کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ مجھے نہیں یہ کہیں گے نہیں میں بتاؤں آپ کو، نہیں بھائی میں نے نہیں آپ سے پوچھا، ہمارے بہت ساری چیزیں جو نہیں ہے وہ کوئی اتنے بڑے مسئلے مسائل نہیں ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیدائشی طور پہ کچھ لوگ ہمارے میں سے کہ ہم ایک سردار کی ٹوپی سمیت پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے تو کیڑے مکوڑے ہیں، تو دوسروں سے کم بھی مجھے بڑے مشورے ملتے ہیں کہ باجی آپ ذرا کم بات کیا کریں، آپ ٹیلی فون پہ نہ بات کیا کریں، تو میں تو اسی ڈینش طریقے سے بات کرتی ہوں کہ اگر میں کسی گروپ میں ہوں ان کا حال حوال پوچھوں ان سے ڈسکس کروں، تو پاکستان تنظیموں میں نا وہ سارا کام جو نہیں ہے وہ صدر کسی کو کرنے نہیں دیتا، کیونکہ ان کی حیثیت صرف ہوتا ہے فلنگ دی بلینکس کہ ظاہر نظر آئے کہ جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے،
अदरवाइज जो नहीं इंतहाई गैर जमहूरी तरीके से पाकिस्तानी तंजीमें चलती हैं, अक्सरियत जो है। सदर डिक्टेटर होता है। जब आप बतौर सदर अपनी उसको क्या कहते हैं, जो बॉडी होती है उसको साथ लेके नहीं चलते, आपकी गुफ्तगू जो नहीं होती है उसको डेनिश में कहते हैं मिल डीलने, एक आप इतला देते हैं। सदर का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी को इकट्ठा करें, जो आपके ओहदेदार हैं उनको डिस्कस करने करने का मौका दें, और उसके बाद जो नतीजा लगता है निकलता है आप उसको एक वोटिंग के जरिए मंजूर करें। उसके बाद आप उसको इतलाई आमा करें। सदर का ये मतलब नहीं होता नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। फिर हर जो है यहाँ पे तंजीम है, उस तंजीम के अंदर उसको काटने के लिए 2 3 4 ग्रुप बने, क्योंकि आप लोगों को स्पेस नहीं देते, आप कंट्रोल फ्रीक है। लुबना आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बातें की, खुल खुलाकर बातें की। जो सवाल हमारे जहन में थे या हमारे लिसनर सामाइन हमें फीडबैक देते रहते हैं, पूछना आपने वो सारे हमने आपसे पूछे और आपने हर सवाल का जवाब दिया, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया। मैं राय साहब आखिर में फिर ये कहूंगी कि ये जो फंड रेजिंग के हैं जो करते हैं लोग, उनसे पूछें ये जो 3 4 सवाल मैंने किए कि आप क्या हमें अखराजात बताएंगे बाद में कि क्या, यानी हिसाब लगाएंगे उसका नेट के ऊपर। आप हमें कोई डेनिश अकाउंट नंबर दें, अगर नहीं तो आप बताएं किस जरिए से पाकिस्तान पैसे जाएंगे, और जो है ये मतलब आपका कितना खर्चा होगा, कि आप कुल पैसे आपके कितने, क्योंकि इस चीज के लिए, इसको सुधारने के लिए जरूरत है कि ये जो हम 3 4 बंद कमरे में बैठ के बात करते हैं, बातें तो पता नहीं कितने करते हैं लेकिन सामने नहीं आते ना। लेकिन ये जायज सवाल है, आप पैसे देते हैं, आपको हक होना चाहिए हिसाब लेने का। और वो भी ये नहीं कि जी फलानी जगह लिखा हुआ है मेरे दफ्तर आ जाओ, नहीं, आप जैसा टिकट बेचते हैं नेट पे लगा के उसी तरह हिसाब। चलें लुबना, इंशाल्लाह डेफिनेट उन्होंने भी सुन लिया होगी आपकी जो राय है, तजवीज़ है, आपने नेक नीयत से दी होगी और इंशाल्लाह उन्होंने सुनी भी होगी। अगर वो टिकट लगाते हैं, नेट पे लगाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो सारी चीज़ें नेट पे नहीं लगा सकते, डेफिनेट वो लगा सकते हैं और लगाएंगे भी। चलें देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। 2025 तक तो कुछ नहीं लगा, होपफुली नया साल, नई उम्मीदें, नए वलवले, तो शायद इसमें कुछ तब्दीली आए। शायद इसमें तब्दीली है। बहुत शुक्रिया लुबना साहिबा। ओके, थैंक यू। समाइन और नाजरीन, ये थी लुबना जो कि साबका सिटी काउंसलर हैं और ये दानश्वर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तजिया भी करती हैं, एनालाइज भी करती हैं और अपनी बात को जो है खुलकर सामने रखती हैं। और जो है वो सियासी, चूँकि वो सियासत करती हैं, ओढ़ना बिछोना उनका भी सियासत है, लोकल कम्युनिटी में बहुत पहचानी जाती हैं और आने वाले हालात पर भी बात करती हैं। इन्होंने ये बात की, सब ने सुनी। सामईन इकराम, हमने सब कोई जवाब देना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, कोई इसका जवाब देना चाहता है, उनके लिए हमारा टाइम हाजिर है, लेकिन हमारा किसी के साथ मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है।